Hello everyone, welcome to Target BFUHS with me Priyanka Randhir, and this session is again going to be very important from the point of view of BFUHS entrance exam. So in this session again I'm going to discuss questions which are on the important topics, and they will be divided into two parts. Part A is the Punjabi part and part B will be the questions from nursing background, right? So let's start with the video. Okay, so before starting I just want to share a very beautiful quote with you, which is ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਸਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੈਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ। ਉਹ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਥੀਸ ਸੈਸ਼ਨਸ, ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਡਿਸਹਾਰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਜਸਟ ਰਿਲੈਕਸ, ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ? ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। forget about just being successful, take experience from your failures also। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਡਿਸਹਾਰਟਡ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਓ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਸੋ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਆਤਮਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਤੇਜਪਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇਜਪਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ। The name of the mother was ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇਵੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੈਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? 10 ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ, ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੈਨ ਬਹਿਸ਼ਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹਿਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਯੈਸ, ਪਰਬਿੱਦੂ
ਭਾਰਤ, ਯੈਸ, ਪ੍ਰਬੁੱਧੀ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਰਸਵਤੀ, ਰਾਈਟ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸੋਨਲ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਸਵਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਕਿਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਲਈ ਉਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਯੈਸ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1920 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਦਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਪਦਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਯੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪਦਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਸਰੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪਦਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1920 ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਆ ਥੋੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਘੋੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਘੋੜੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੌਂਗਸ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਗਰਲਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਹਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਹਾਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੈਸ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਪਲੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਮੋਦਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾਮੋਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਮੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ? ਸੰਮੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ? ਸੋ ਸੰਮੀ ਸੰਦਲਬਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਸੰਦਲਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਮੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਸੰਦਲਬਾਰ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਮੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਦਲਬਾਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ, ਵਿਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਮਰੀ ਟਿਪਸ, ਕੁਝ ਨਿਮੋਨਿਕਸ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਓਕੇ, ਮਾइक्रोबायोलॉजी या कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग दोवां ਦਾ टॉपिक है ਪੈਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ठीक है, ਪੈਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। सो ਪੈਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैस्चराइजेशन ਜਿਹੜਾ प्रोसीजर है वो किन्नू प्यूरीफाई करता है। ठीक है, सो लेट मी टेल यू इट इज फॉर मिल्क, दूध, राइट। सो पैस्चराइजेशन इज बेसिकली बॉइलिंग द मिल्क। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ बॉइल करते हैं ना मिल्क, क्यों करते हैं? ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, जो पैथोजेंस ने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल करती है। ठीक है, सो दुध पीन लायक हो जाए तो पैस्चराइजेशन की जाती है। हुण पैस्चराइजेशन एक पर्टिकुलर टैंपरेचर ते करते हाँ। सो प्लीज़ आ निमोनिक तुसी याद रखियो। यस, पैस्चराइजेशन लई बहुत ही सिंपल जिहा निमोनिक है, दैट इज 72 saves you। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि 72 डिग्री फ़ारेनहाइट ते, सैल्सियस की गल नहीं हो रही है, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट ते जे दुध नू असी बॉयल करिए, ठीक है, तो दुध जिहड़ा है वो पैस्चराइज्ड हो जाता है। राइट, सो आ तुहानू याद होना चाहिए किन्ना 72 डिग्री फ़ारेनहाइट ते। किन्ने टाइम ਲਈ जे 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो बहुत घट 15 सेकंड्स ਲਈ भी बॉयल करोगे ठीक हो जाएगा। जे असी सैल्सियस की गल करिए तो सैल्सियस 'च यूजली असी जिहड़ा करदे आ, होर भी मैथड्स ने, जे सैल्सियस 'च करिए वो मैथड्स जिवें LT मैथड्स असी करते हैं, वो है 63 डिग्री सैल्सियस ते असी 30 मिनट्स ਲਈ करने आ। राइट, सो बेसिकली पैस्चराइजेशन च तुसी की याद रखना है, 72 डिग्री सैल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स। राइट, चलो नेक्स्ट, पैप स्मीयर। पैप स्मीयर इज यूज्ड टू डायग्नोस। पैप स्मीयर सानू की डायग्नोस करन लई हेल्प करता है। सो प्लीज़ याद रखियो, पैप स्मीयर जिहड़ा है सानू सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स का जिहड़ा कैंसर है ਉਹਨੂੰ डायग्नोस करन लई हेल्प करता है। करदे की आ, एक स्पैचुला हुंदा है, ठीक है, एक स्पैचुला हुंदा है, ਉਹਨੂੰ इंसर्ट करदे आ सर्विक्स दे विच ते सर्विक्स विचों सैंपल लैंदे आ। ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ फिर ग्लास स्लाइड ते स्प्रैड करके फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ माइक्रोस्कोप दे अंडर वेखदे आ ते सानू पता लगता है कि मल्टीप्लिकेशन किवें हो रही है सैल्स की। जे अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन है, जे अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन है मीनस लिमिटेड नंबर च मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है तो वो कैंसरस ग्रोथ है। ठीक है, सो वो कैंसरस ग्रोथ मन्नी जाती है। सो ये लिए भी मैं तुहानू एक छोटा जिहा निमोनिक दसना चाहनी हाँ, लिख लो तुसी, स्मीयर टू सी क्लीयर। ठीक है, सो स्मीयर की होंदा है जो ब्लड ते असी स्प्रैड करते हैं सैंपल नू। किवें लिता है सैंपल? स्पैचुला दे थ्रू, है ना। स्पैचुला कित्थे इंसर्ट किया है? सर्विक्स च। पैप स्मीयर इसनू कहने आ, स्मीयर ताही वर्ड है, राइट। सो पैप स्मीयर असी इनू कहने आ ते असी निमोनिक की याद किया है, स्मीयर टू क्लीयर। सो पैप स्मीयर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि आ कैंसर नू डिटेक्ट करता है, राइट। इस तो अलावा पैप स्मीयर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पैप स्मीयर नाल ही सानू पता लगता है, इत्थे मैं लिख देनी आ, पैप स्मीयर नाल सानू पता लगता है कि असी एक्शन की लेना है, राइट। वॉट एक्शन वी हैव टू टेक, वॉट एक्शन वी हैव टू
टेक ओ सानू किवें पता लगदा है? यस वेरी गुड, सानू पैप स्मीयर नाल पता लगदा है, राइट। ओके सो एक चीज़ होर इहदे च तुसीं याद रखनी है कि ਅਸੀਂ बेसिकली की करते हैं, ਅਸੀਂ माइक्रो जिहड़ी फिल्म बनाने हैं ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कहने हैं ਪੈਰੀਫਰਲ ब्लड ਸਮੀਅਰ। ਤੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮੂਥ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ है ना, जिन्ना पतली लेयर होएगी उन्ने क्लीयर सैल सानू विखणगे। सो तुसी बस इन्ना याद रखना है कि जदों पैप स्मीयर की गल आए इट इज़ फॉर सर्विक्स, राइट। ठीक है जी, ओके। अच्छा एक चीज़ मैं इत्थे होर ऐड करना चाह रही हाँ, जिहड़ा पैप स्मीयर है, एक क्वेश्चन आया होया है, आ प्राइमरी प्रिवेंशन है कि सैकेंडरी प्रिवेंशन है? आ कम्यूनिटी च क्वेश्चन आया होया है, प्राइमरी प्रिवेंशन च आएगा कि सैकेंडरी प्रिवेंशन से कौन दसेगा? दसो, इज इट प्राइमरी प्रिवेंशन और इज इट सैकेंडरी प्रिवेंशन? केड़ी प्रिवेंशन आ? वेरी गुड, it is secondary prevention. Why? Because early diagnosis and treatment किदे अंडर आंदा है? secondary prevention चे। प्राइमरी चे असी प्रिवेंट करते हैं रिस्क फैक्टर्स, राइट। सो आप थोड़ा क्लैरिटी तुहानू होनी चाहिए। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इत्थे गल हो रही है BMI दी, राइट। सो BMI जिहड़ा है एडल्ट विच दसदा है कि साडा जिहड़ा वेट है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, राइट। सो BMI इन्होंने क्या है कि जे एक एडल्ट है उन्होंने डिक्लेयर करता गया है ओबीज ते ओदा BMI विल बी मोर दैन कितना होएगा? सो इको ही ऑप्शंस ने, तुसी यू कैन इग्नोर इट। सो ओदा BMI होएगा 30, ठीक है। किवें तुसी पता करदे हो? मैं एक टेबल तुहानू इत्थे दस रही हाँ। सब तो पहला असीं गल करदे हां अंडरवेट दी। जे कोई अंडरवेट है असीं किवें पता करदे हां कि वो अंडरवेट है? जे ओदा BMI जिहड़ा है दैट इज लेस दैन 18.5, ठीक है। BMI जे लेस दैन किया, लेस दैन है 18.5 ते असी की कहने आ वो है ओबीज, राइट। BMI किवें कैलकुलेट करते हैं? वेट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। सो वेट ऑफ दैट पर्सन इन kg ओवर हाइट इन मीटर स्केयर। हाइट असी लैने आ मीटर स्केयर दे विच, राइट। सो इवें तुसी किसी का भी BMI जिहड़ा है कैलकुलेट कर सकते हो। सो BMI दी फुल फॉर्म की होंदी है? बॉडी मास इंडेक्स। जिन्होंने नहीं पता है बॉडी मास इंडेक्स, राइट। सो BMI इज बॉडी मास इंडेक्स। किवें कैलकुलेट करते हैं? वेट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्केयर एंड देन इट इज a value is there. So J value आंदी है less than 18.5 the person is underweight, ठीक है। उस तो बाद गल करते हैं नॉर्मल दी। नॉर्मल BMI असी किन्ना नू कवांगे? नॉर्मल असी कहने हाँ 18.5 तो लैके 24.9 इनू असी नॉर्मल BMI वैल्यू कहने आ। हुण नॉर्मल तो बाद की आंदा है? ओवरवेट। सी ओवरवेट ते ओबीज डिफरेंट चीज़ां ने, ठीक है। ओवरवेट हुण 24.9 तक की सी? नॉर्मल सी। हुण असी लैने हाँ 30 to 34.9, 30 to 34.9। सो सी ओवरवेट में तुहानू क्या है कि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ओबीज। क्यों? क्योंकि ओबेसिटी दी टाइप्स होंदियां है ते अंडर ओबेसिटी ओदी एक टाइप है ओवरवेट, ठीक है। सो ओबेसिटी एक जनरल टर्म है
राइट। ओबेसिटी की है एक जनरल टर्म है, ਉਹਦੇ अंडर आंदा है ओवर वेट, राइट। सो 30 to 34.9 जो है it comes under class 1 obesity, ठीक है। ਹੁਣ क्वेश्चन च मैंशन नहीं आ, लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन क्लास 1 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ 30 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ most appropriate answer is going to be 30 because class 1 overweight, class 1 obesity ਜਿਹੜਾ overweight ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਤੋਂ start ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, overweight ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਂਦਾ ਹੈ obesity term, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ class 2, class 2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39.9, 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39.9। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ obese ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ overweight ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ obesity ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ obese ਦੇ ਅੰਦਰ मैं obesity लिखी है, बट obese ਦੇ एक्चुअली अंडर आते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। पहला है overweight, दूजा है obesity, ठीक है, दूजा है obesity ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ outrageous, means बहुत ही ज़्यादा हो गया है, it is greater than equal to 40 BMI, ठीक है। सो इनू असी क्लास 3 भी कहने या morbid भी कहने, morbid, ठीक है। सो आ टेबल तुहानू पता होना चाहिए, अंडरवेट किन्ना, नॉर्मल किन्ना, ओवरवेट किन्ना, ओबेसिटी किन्नी, आउटरेजियस किन्ने BMI ते हुंदा है, राइट। सो आ टेबल जे तुहानू आएगा then you will find no problem in answering the BMI questions, right? Okay, next question देखते हैं। Okay, question says the drug of choice for induction of ovulation, केड़ी drug है जिहड़ी ovulation करांदी आ, कित्थे सानू जरूरत पएगी ovulation दी जे इनफर्टिलिटी दा कॉज है कि एग नहीं बन रहा है ना, एग रिलीज नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन च प्रॉब्लम है, तो असी केड़ी मेडिसिन दवांगे, असी दवांगे क्लोमीफीन, केड़ी दवांगे, असी दवांगे क्लोमीफीन, क्लोमीफीन। हुण जिहड़ी आ क्लोमीफीन मेडिसिन है आ की करदी है, आ मिमिक करती है ईस्ट्रोजन नू, मिमिक दा की मतलब है नकल करती है, केदी ईस्ट्रोजन दी। मैं बिल्कुल सिंपल शब्दां च दस रही हाँ, मैकेनिज्म एग्जैक्ट थोड़ा टिपिकल है, बट फिलहाल तुसी आ लर्न करो। क्लोमीफिन ईस्ट्रोजन नू कॉपी, ओदा एक्शन कॉपी करन दी कोशिश करती है, किवें करती है, इट ब्लॉक्स द ईस्ट्रोजन, आ मेन ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स नू की करती है, ब्लॉक कर देंदी है, ठीक है। इट ब्लॉक्स द ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन द ब्रेन, सो ब्रेन विच जिहड़े ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है उन्हें ब्लॉक कर देंदी है। उहदे नाल की होएगा, एनी आइडिया की होएगा, जे ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ब्रेन च ब्लॉक हो गए तो की होएगा, इन्हें ब्रेन नू ट्रिक करता है, एक तरह का छलावा देता है, ब्रेन नू लगेगा कि जेड़ा रिसेप्टर्स क्योंकि ब्लॉक हो गए ने, है ना, तो ब्रेन नू की लगेगा कि ईस्ट्रोजन लेवल लो हो गया है, ब्रेन नू लगेगा कि ईस्ट्रोजन दा लेवल लो हो गया है बॉडी विच। फिर ब्रेन की करेगा, ब्रेन इनक्रीज कर देगा कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच इज नोन एज GnRH। हुण आ GnRH इत्थे लिख देने आ GnRH की करता है, आ GnRH इनक्रीज कर देगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ते ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, आ दोवें हार्मोन इनक्रीज हो जाएंगे ते आही रिस्पॉन्सिबल ने फॉर ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन? रिलीज ऑफ एग, ठीक है। सो सिंपल जी कहानी है,
कि क्लोमीफीन ने एक तरह मिमिक करना है ईस्ट्रोजन नू ते ब्रेन दे रिसैप्टर्स ब्लॉक करते हैं ब्रेन नू लगेगा ईस्ट्रोजन लैवल घट है और GnRH इंक्रीज कर देगा GnRH इंक्रीज होएगा FSH LH इंक्रीज होएगा तो ओवुलेशन हो जाएगी तो जो प्रॉब्लम सी कि ओवुलेशन नहीं हो रही है इनफर्टिलिटी उदा करके सी सो एग डेवलपमेंट हुन हो जाएगी क्लियर है सो सिंपल जो है एक फंडा है राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ORS oral rehydration solution mainly contains की हुंदा है ORS चे so ORS चे हुंदा है सोडियम ते ग्लूकोज राइट ग्लूकोज एक easily absorbable form है so सोडियम ते ग्लूकोज हुंदा है इस तो इलावा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक आ स्लाइड विखा देनी आ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ORS ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਕੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ ਜੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਲੀਅਰ सोडियम क्लोराइड जी असी गल करिए इट इज 2.6 ग्राम ठीक है उस तो बाद पोटैशियम क्लोराइड जी असी गल करिए इट इज 1.5 ग्राम ठीक है देन वी हैव सोडियम सिट्रेट कितना है जी सोडियम सिट्रेट इट इज 2.9 ग्राम फिर डेक्सट्रोज एनहाइड्रस आ ग्लूकोसिया एनहाइड्रस मीन्स पाउडर फॉर्म में ठीक है ओके सो डेक्सट्रोज ग्लूकोज मीन्स डेक्सट्रोज ग्लूकोज इज the powdered form of dextrose is glucose only right dextrose ਅਸੀਂ glucose ਨੂੰ ਹੀ consider ਕਰਦੇ ਆ and it is 13.5 gram right so ਆ basically ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ general WHO ਨੇ recommend ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲੀਮੋਲ ਪਰ ਲੀਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਓਕੇ यूजली ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राम 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ पर जे मिलीमोल पर लीटर 'ਚ पता करना है तो आ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ राइट सो आ कंपोजिशन ਤੁਹਾਨੂੰ लर्न होनी चाहिए है बिकॉज ORS के क्वेश्चंस आते हैं चलो किवें बनाईदा है ORS 1 लीटर हमेशा किन्ने वाटर 'ਚ 1 लीटर या 1000 ml 'ਚ एक पूरा पैकेट ते सिप करके 24 घंटिया 'ਚ खत्म करना होंदा है आफ्टर 24 आवर्स जो बचिया भी है तो उन्होंने डिस्कार्ड करके नवा सोल्यूशन बनाना होंदा है ठीक है आ थोड़ी गल्लां तुसीं दसनी है ओके देन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यू सेल्स आ टर्मिनोलॉजीज ने न्यू सेल्स जे न्यू सेल्स इंक्रीज कर रहे ने असी उन्होंने की कवांगे राइट सो मैनू पहला थोड़ा जिहा तुहानूं दस्सण दिओ एट्रोफी की है सेल्स श्रिंक कर गए ने ठीक है श्रिंके छोटे हो गए ने सेल्स हाइपरप्लेजिया हाइपर दा मतलब की हुंदा है वध रहा है इनक्रीज्ड वधदे पए ने ठीक है प्लेजिया असी वर्ड यूज करते हाँ टू शो द डिविजन्स ओनली राइट सो मल्टीपल नंबर जे हो गए ने मल्टीपल नंबर्स विच जे हो रहे ने सेल्स then it is hyperplasia मेटाप्लेजिया हुंदा है कि एक टाइप तो दूजी टाइप च चेंज हो गए ठीक है पहला कोई होर टाइप सी सेल दी है ना लेट्स सपोज कोई कोल्यूमिनर सेल सी है ना वो चेंज कर रहा है अपने स्ट्रक्चर नूं ठीक है सो जदों चेंजेस आन लगदे ने इट इज नोन एज मेटाप्लेजिया and hypertrophy hyper again it means increase in size ठीक है hypertrophy च की हुंदा है सेल दा साइज इंक्रीज हो जाता है लेट्स सपोज इन्ना जिहा सेल सी सो hypertrophy विच सेल दा साइज सेल फुल जाता है सेल दा साइज इंक्रीज हो जाता है रीजन कुछ भी हो सकता है राइट सो इन्होंने की किया न्यू सेल किवें बननगे केड़े प्रोसैस के थ्रू बननगे न्यू सेल मल्टीपल नंबर्स जो इंक्रीज हो रहे हैं सो द आंसर इज हाइपरप्लेजिया
राइट। सो सेल्स मल्टीप्लाई, न्यू सेल्स बनते हैं, इट अकर्स इन हाइपरप्लेसिया। ओके, चलो नेक्स्ट, द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। जे तुसी चाहते हो कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, है ना, जे तुसी चाहते हो कि वधिया नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो प्रेजेंटेशन की होनी चाहिए। पहला तो प्रेजेंटेशन हुंदा की आ तुहानू पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन हुंदा है कि जेड़ा पार्ट बच्चे दा बॉडी दा केड़ा पार्ट है जेड़ा कि सब तो पहला डिलीवरी दे टाइम ते अगे आएगा। मोटे मोटी गल्लां च डेफिनेशन थोड़ी डिफरेंट है, टिपिकल है, बट आ बस तुसी समझ लो कि केड़ा पार्ट जेड़ा है, केड़ा हिस्सा है ना, केड़ा हिस्सा बच्चे दा डिलीवरी दे टाइम ते सब तो पहला आएगा, दैट इज प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन यूजली बच्चे दी होनी चाहिए वर्टेक्स। वर्टेक्स नू असी सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी कहने हाँ। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, ਇਹਦਾ मतलब है कि बच्चे दा हैड पहला आएगा बाहर। ठीक है, थले तुहानू हैड विख रहा है, आ ही नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए है। जे हैड तो अलावा कोई भी पार्ट आंदा है बाहर, प्रेजेंटिंग पार्ट कोई भी है, उस कंडीशन च असी कहने आ इट इज ब्रीच प्रेजेंटेशन, इट इज ब्रीच प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो आ गल तुहानू पता होनी चाहिए। ब्रीच च आ सारी आती है, शोल्डर, जे बच्चे का शोल्डर पहला बाहर आ रहा है, शोल्डर प्रेजेंटेशन। जे बच्चे का फेस, मुंह, मतलब एक होंगे कि फ्लैक्स है, बिल्कुल हैड विख रहा है, एक है कि बच्चे ने थोड़ा जहा ना उपर नू किया होया एक्सटेंड हैड, तो फेस पहला आएगा। ठीक है, आ वाला स्कल वाला पार्ट नहीं आएगा, राइट। सो दैट इज फेस प्रेजेंटेशन। तो पोडैलिक मीनस की पैर है ना, वो बाहर आए तो इट इज पोडैलिक प्रेजेंटेशन। कई तरह की प्रेजेंटेशन होंगी है, नॉर्मल इज वर्टेक्स या सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, जे यूरिन दे विच ब्लड प्रेजेंट है तो उन्होंने असी की कवांगे। पहली गल, जदों भी ब्लड वर्ड आता है ना किते हीम वर्ड जरूर अटैच्ड होता है, हीम। सो ऑप्शंस च वेखो किते हीम लिखे, जस्ट लुक एट दी ऑप्शंस, किते भी हीम लिखे है। ऑप्शन डी इज हेमाचूरिया। सो हेमाचूरिया विच हीम प्लस यूरिन तो बनाया गया है वर्ड विच इज हेमाचूरिया। ठीक है, सो हीम इज रिलेटेड टू ब्लड। सो जदों भी ब्लड आएगा यूरिन विच, इट इज नोन एज हेमाचूरिया, राइट। इस तो अलावा जे असीं गल करिए प्रोटीन यूरिया की, प्रोटीन यूरिया है जो प्रोटीन यूजुअली प्रोटीन क्रॉस नहीं कर सकती ग्लोमेरुलर कैप्सूल नूं। ठीक है, लेट्स सपोज जे असीं ड्रॉ करिए आ किडनी का ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, राइट। सो आ जिहड़ा स्ट्रक्चर है बोमन्स कैप्सूल जिहड़ा असीं कहने आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्रोटीन नहीं पास कर सकती नॉर्मल कंडीशन विच, क्योंकि प्रोटीन वड्डी हुंदी है साइज च, राइट। बट जे प्रोटीन पास कर जाती है, जे पास कर जाती है कित्थे विखेगी, यूरिन विच। सो जदों प्रोटीन यूरिन विच विखनी शुरू हो जाए, ठीक है, तो असीं उहनूं कहने हाँ प्रोटीन यूरिया। ते किन्नी प्रोटीन, जे 150 mg पर डे तो ज़्यादा है, जे 150 mg पर डे तो ज़्यादा है तो then it is known as protein urea। ठीक है, ओके। then comes polyuria, मैं इत्थे ही एक्सप्लेन कर देनी है polyuria भी। ओके, what is poly? poly जदों भी वर्ड आता है ना मीन्स एक्सेस च है, कुछ ज़्यादा ही है कुछ। ठीक है, सो पॉलीयूरिया मीन्स बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है। किन्ना बहुत ज़्यादा असीं किन्नू कवांगे, कुछ ना कुछ मेजरमेंट तो रखनी पैनी है ना। सो जे यूरिन जिहड़ा है ग्रेटर देन 3 लीटर्स पर डे है, ठीक है जी।
पूरे दिन च एडल्ट्स विच ग्रेटर देन 3 लीटर पर डे है, then it is known as polyuria. किस कंडीशन च हो सकता है? Yes, another question very important. किस कंडीशन च होएगा? डायबिटीज mellitus च भी होएगा, डायबिटीज insipidus विच भी होएगा, या पेशेंट किसे डायूरेटिक ते है, कोई लैसिक्स ले रहा है, कोई भी डायूरेटिक ले रहा है उदों होएगा, या पेशेंट दा हाई फ्लूइड इनटेक है, पानी बहुत ज्यादा पी रहा है, ठीक है, फिर भी पानी जिन्ना मर्जी पी लो इन्ना भी पॉलीयूरिया पॉसिबल नहीं हुंदा है, आ एक प्रॉब्लम ही है। ते यस ऑफ कोर्स किडनी डिजीज जिहड़ा मैं इत्थे तुहानूं पहले ही दसती है कि कोई किडनी डिजीज है जिहदा करके कि फिल्ट्रेशन प्रोसैस खराब हो गया, राइट, सो दैट इज पॉलीयूरिया। हुण आंदा है साडा यूरीमिया। यूरीमिया सिंपल हुंदा है, इहदी कोई वैल्यू नहीं है कि इन्ना होएगा तो असीं यूरीमिया कवांगे। यूजुअली यूरिन च वेस्ट प्रोडक्ट्स होने ही नहीं चाहिए, यूरिया के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए, राइट, बट जे वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिन विच क्लीयरली विख रहे ने ते असी उन्होंने कहने हाँ यूरीमिया, ठीक है जी। सो यूरीमिया इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स किदी फॉर्म च, यूरिया या यूरिया दी फॉर्म च हो सकते हैं, या नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजीनस वेस्ट, ठीक है, इन वेयर इन ब्लड आ यूरिन च नहीं है, ईमिया, ठीक है, नॉट इन यूरिन, सॉरी, इट इज इन ब्लड, बाकी सारे यूरिन च ने, यूरीमिया इज इन ब्लड, ठीक है। पॉली प्रोटीन यूरिया, पॉलीयूरिया, हेमेचूरिया all are related to urine, right? यूरीमिया itself is related to blood. blood च normally waste products नहीं होने चाहिए ने, लेकिन जे blood च यूरिया या यूरिया दे products विकते ने, nitrogenous waste विकदा है, traces मिलदे ने, then it is known as uremia, right? That means किते ना किते kidney functions proper नहीं कर रही है। Clear है? चलो, moving on to the next question. A pregnant woman visits a hospital with a hemoglobin level of less than 8 gram/cent just 7 days before surgery. Before delivery. So delivery होने वाली है ते mother दा antenatal woman दा HB less than 8 gram है, की करोगे? Yes. Who is going to tell me? की करोगे? Very good. The correct answer is blood transfusion because 8 बहुत ही घट HB है, right? हुन प्लीज एक चार्ट तुसी नोट कर लो, हीमोग्लोबिन लेवल, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन लेवल है असी केड़ी कैटेगरी च उन्नू पाने हाँ ते की इंटरवेंशन कर सकते हाँ। First one is J hemoglobin level greater than 11 ग्राम पर डेसीलीटर है, इनू असी नॉर्मल कहने हाँ, ते रूटीन फॉलिक एसिड जिहड़ा पेशेंट लै रहे उन्नू कहो तुसी बस रूटीन फॉलिक एसिड ते आयरन लैंदे रहो, जो सप्लीमेंट्स लै रहे सी। क्लीयर है? आ सब तो फर्स्ट कंडीशन है। इस तो बाद आ नंबर 1 है। नंबर 2, जदों HB दा लेवल 10 तो 10.9 ग्राम पर DL हो जाता है, इनू असी कहने हाँ माइल्ड अनीमिया, इनू असी की कहने हाँ माइल्ड अनीमिया, राइट। हुन माइल्ड अनीमिया दे केस च असी ओरल आयरन थेरेपी देनी है, ठीक है जी, कितनी देनी है? ओरल आयरन थेरेपी असी 60 to 120 mg देने हाँ आयरन डेली, ठीक है। सो 10 तो 10.9 है एंड प्लस तुसी उन्हां दी डाइटरी काउंसलिंग कर दो कि गुड़ खाओ, ठीक है, चने ज़्यादा खाओ, गुड़ खाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ है
या आयरन रिच सोर्सेस तुसी दस दो कि तुसी आ लै सकते हो। ठीक है, हरी सब्जियां खान, आ सारी चीज़ां तुसी पेशेंट नू दसनी है। उस तो बाद थर्ड कैटेगरी साडी HB लेवल दी आंदी है, विच इज 7 to 9.9 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है जी, हुण होर घट गया है ते माइल्ड तो असी चल गए हाँ मॉडरेट अनीमिया वाल। हुण इट इज मॉडरेट अनीमिया। सो की करोगे इस कंडीशन च? हुण ओरल भी नहीं काम कर रहा, डिप ही कर गया, होर थल्ले आ गया HB। यस, वेरी गुड। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਰਲ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਪੈਰੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ IV ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, IV ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਟਿਲ ਜਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਮ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, HB ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਆਇਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਇਰਨ ਇਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ कोई प्रॉब्लम ना आए, right? Then is the fourth point. I am writing it here. Fourth point. ਹੁਣ fourth point ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? Less than 7 gram per deciliter. This is severe anemia. This is severe anemia. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਤੋਂ ਲੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਯੂਜਲੀ ਜਦੋਂ 7 to 9.9 है, which is actually less than 8 only, है ना, less than 8, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ less than 8 'ਚ ਹੀ consider ਕਰਦੇ ਹਾਂ, less than 7 or 7, it is less than equal to 7, so less than equal to 7 ਹੋਏ ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ, then there is no other alternative except for blood transfusion, right? Okay, सो ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 7 ਹੋਏ, 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਫ ਲੈਸ ਦੈਨ 8 ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 7 ਓਨਲੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ 7 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ BT ਹੀ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, that is more appropriate to ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋ। ਸੋ 8 to 9.9 ਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਹੈ, then we'll give BT only, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਿਵ BT ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਤੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, BT ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹ ਬਲੱਡ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, HB ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਓਕੇ। Then dengue fever is transmitted by which mosquito? ਕਿਹੜਾ ਹੈ? So it is Aedes mosquito, right? So this you should know. Aedes ਜਿਹੜਾ ਹੈ, Aedes aegypti, ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਲਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਊਲਿਕਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਊਲਿਕਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਇਜ਼ ਫਿਲੇਰੀਆਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੈਪਨੀਜ਼ एनसेफेलाइटिस, ਆ ਵੀ कौन करता है? क्यूलिक्स करता है। ठीक है, ते वेस्ट नाइल फीवर, राइट, वेस्ट नाइल फीवर भी क्यूलिक्स करता है। उस तो अलावा है मैंसोनिया। मैंसोनिया की करता है? मैंसोनिया करता है एक डिजीज जिन्हों असी कहने हाँ ब्रूगियन फिलेरियासिस। ठीक है जी, सो ब्रूगियन फिलेरियासिस जो है ते वो मैंसोनिया करता है, राइट। ते एनोफिलीज की करती है? एनोफिलीज भी बड़ा कुछ करती है, डेंगू करती है, चिकनगुनिया करती है, पिछे बहुत फैलिया सी ना चिकनगुनिया। ठीक है,
ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯੈਲੋ ਫੀਵਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਫੀਵਰ। ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਏਡੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ, ਕਿਊਲੈਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਲੇਰੀਆਸਿਸ, ਜਾਪਨੀਜ਼ ਐਨਸੈਫੇਲਾਈਟਸ ਤੇ ਵੈਸਟ ਨਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਮੈਨਸੋਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰੂਗੀਅਨ ਫਿਲੇਰੀਆਸਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਸ ਐਨੋਫਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਨੋਫਿਲੀਜ਼ ਰਾਈਟ, ਐਨੋਫਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਜ਼ੀਕਾ ਤੇ ਯੈਲੋ ਫੀਵਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। ਐਂਡ try to solve more MCQs. You can download the app Target High Digital, Target High book ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। So thank you so much for being here with me and listening patiently to this video. So be consistent, be patient, don't have anxiety, just do your best and give your best. Thank you so much.